Can you see the screen, please? Yes, sir. So now, after having seen about the different quantum numbers related with the electrons which are revolving around the nucleus in a circular orbit, the next term that we are going to consider here today is LS and JJ coupling, isn't it? As you know, the second chapter is in progress, titled Vectors Atomic Model, isn't it? This vector atomic model is nothing but it is the same atomic model which we have already seen in the first chapter, but it adds some dimensions to that one. What are these dimensions? The first dimension that has been added in the vector atom model is that electron which is revolving around the nucleus in the circular orbit has two types of angular momentum. One, it is the orbital angular momentum, and another is spin angular momentum. And related to this orbital angular momentum and spin angular momentum, then their respective quantum numbers are added. That is orbital angular momentum, or it is also called as the azimuthal angular momentum. It is denoted by the symbol L. Am I correct? Secondly, the spin, because the spin the electron, because when the electron is moving or revolving around the nucleus in the circular orbit, at the same time they perform the motion about their own axis, that is termed as the spin, and due to the spinning of the electron, one type of momentum is created, and that momentum is called as the spin orbit momentum or angular spin momentum, and the quantum number related to the spin of electron, it is called as spin orbit angular momentum, denoted by the symbol S. Are you agree with this my statement? Yes, sir. That one more dimension is added by the vector model, that these electrons which are oriented in the space, they are quantized. That means the orientation, space orientation is also quantized, and the orbital angular momentum is also quantized. This is the one thing. So one more addition, it is one more dimension it is added to the vector model, is that these electrons which are revolving and the concept associated with moving electron, that is angular momentum, spin angular momentum, all these are वेक्टर क्वांटिटीज. एक और चीज का पहले चैप्टर पढ़ते वक्त वेक्टर वगैरह का तस्करा नहीं करे थे, लेकिन वेक्टर एटम मॉडल ने एक और चीज का इजाफा करा हमारे नॉलेज में कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अतराफ हरकत कर रहे, घूम रहे, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे, जिनके साथ एंगुलर मोमेंटम लगी हुई है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लगी हुई है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम लगी हुई है, नेज वो 6 मैग्नेट क्वांटम नंबर्स लगे हुए हैं, ये सब के सब कैसे हैं? वेक्टर क्वांटिटीज है. ये सब के सब कैसे है? वेक्टर क्वांटिटीज है. ठीक है, समझ में आ गई बात. एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कपलिंग नाउ. अब हमारे नॉलेज में अभी तक क्या आ गया कि द इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट possess orbital angular momentum capital L and spin orbit angular momentum S. Am I correct? Yes, sir. And that means when we have to give the quantum state of the electron, what we want, जब हम हमको जब किसी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में क्वांटम स्टेट को जाहिर करना है, स्पेसिफाई करना है, तो व्हाट वी हैव टू गिव? वी हैव टू गिव दीज क्वांटम नंबर्स. एम आई करेक्ट? That is orbital quantum number. We have to give about the spin quantum number, magnetic quantum, all these things. 6 different quantum numbers were there. Something 3 to 4 we want to give at least, so that the quantum state of that particular electron in an orbit can be specified. Am I correct? But one more thing that I would like to share with you, that these angular momentum, these spin angular momentum, and all these terms are related to the electron. Isn't correct? बराबर बोल रहा हूं मैं? Yes. अब जब किसी एटम में
एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक से जायद है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उस वक्त अपने को क्या करना पड़ेगी, हर एक की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यल लेना पड़ेगी, बराबर है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को क्या है, हर इलेक्ट्रॉन को क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, बराबर है। एक था जब तक ठीक था, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्मॉल यल, उसी सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एस। एम ए करेक्ट? अब दोनों को मिला दिए, यल इंटू एस कर दी, हो गई बात। लेकिन एटम में एवरी टाइम इज इट देयर ओनली वन ऑर्बिट इज प्रेजेंट? नो, इलेक्ट्रॉन भी एक ही रहेगा, जरूरी है कि हर वक्त? No. नो। सो नहीं। इन द ऑर्बिट if there are two or more than two electrons are present, जब एक या एक दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम की अगर आपको अब एंगुलर मोमेंटम दो बोले, उस एटम की आपको जो है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम दो बोले, तो क्या करना पड़ेगा अपने को? अब पहले इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम प्लस दूसरे की एंगुलर मोमेंटम प्लस तीसरे की एंगुलर मोमेंटम सबकी जमा करना पड़ेगी कि नहीं? समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले कपलिंग को समझिए, आगे की टेक्निकलिटी समझ में आ जाएगी। भाई एक एटम है, उसके एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर क्या करेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन का यल निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का यस निकालेंगे, जमा करके क्या बोलेंगे, यही पूरे एटम का क्या है, जे है, बराबर है क्या नहीं? क्योंकि जे इज इक्वल टू क्या, यल प्लस एस। यल कैसा निकालते हैं आपको बता दिए, 0 1 2 3 है, उसका फार्मूला आपको बता दिए। उसके बाद जे का फार्मूला बता दिए, जे इज इक्वल टू अंडर जे इंटू जे प्लस 1 इंटू यल, यस इज इक्वल टू एच क्रॉस इंटू यस इंटू 1 बाय हाफ रेज टू एच। वो फार्मूला पढ़ लिया ना आपने, पिछले पूरे आर्टिकल देखे हुए ना आपने, सब बता दिए। लेकिन अब हम आपको ये बता रहे हैं कि भाई हमेशा ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या? नहीं, मोर देन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और वो भी कौन से ऑर्बिट में, पर्टिकुलरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि जनरली किसी एटम की स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी, उसका अच्छा बुरा अपन कौन से हिसाब से डिसाइड करते? केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे आपने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ये एटम स्टेबल है कि इनस्टेबल है, आप कौन से तरीके से बोलते? कब बोलते आप? जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंसी से बोलते ना आप। आपको याद आता है कि केमिस्ट्री का कुछ पार्ट बोलिए ना प्लीज, आप लोग अनम्यूट करके मेरे साथ। हाँ, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते कि वो एटम स्टेबल है, इनस्टेबल है, उसको 2 की जरूरत है, 4 की जरूरत है कि नहीं? एम आई करेक्ट? Yes, sir. So in this case also, when in an atom in the outermost orbit, 2 or more than 2 electrons are present, and at that time we want to give the total angular momentum capital J. अब वैसे एटम की जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम आपको दी, टोटल एंगुलर मोमेंटम एटम की बोले तो किसकी रहेंगी? वो इलेक्ट्रॉन की। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का यल निकालेंगे, वो इलेक्ट्रॉन का यस निकालेंगे, जे इज इक्वल टू यल प्लस एस करेंगे, दे देंगे। एम ए करेक्ट? लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 2 से ज्यादा है और उस वक्त आपको बोले कि वो आइटम का जो है तो आप टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल जे दीजिए, उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको? पहले इलेक्ट्रॉन का यल निकालना पड़ेगा, बराबर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का यल निकालना पड़ेगा। यल समझ में आ रहा? मैं सिंबल के हिसाब से बोल रहा हूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसकी जमा करना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? यल इज इक्वल टू कैपिटल यल इज इक्वल टू स्मॉल यल1 प्लस स्मॉल यल2। एम ए करेक्ट? फिर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगी, यस, समझ, यस 1 बोलो थोड़ी देर के लिए, दूसरे की निकालना पड़ेगी यस 2, दोनों की जमा करना पड़ेगी, वो क्या होगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट, वो हो गई कैपिटल एस। फिर अब टोटल जे निकालने का तो फिर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल जे मसाई है यल, कैपिटल यल जमा एस, कैपिटल एस, इसको जमा करे आपने। अब ऐसा करके आपने क्या करे, टोटल एंगुलर मोमेंटम जमा करे, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम करे, दोनों की जमा करे, है कि नहीं? ये हो गई सिंपल बात, अगर उसके अंदर डायरेक्शन नहीं है तो।
लेकिन ये सादी जमा करना इतना आसान है क्या? अपनी नंबर की जमा है क्या वो? No. क्योंकि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट मीन्स ये जमा करना यानी कि एडिशन करना, ये कंबाइन करने को जो है तो क्या नाम से पुकारते? कपलिंग। इट इज कॉल्ड एज coupling. So in an atom having two or more electron, spin angular momentum and orbital angular momentum of all the electrons can be added. समझ में आ गई बात? And for adding this spin angular momentum and this orbital angular momentum, there are the two different ways. And this combination, ये जमाव, ये जुड़ाव, ये कपलिंग, ये दोनों को मिलाना किसके ऊपर डिपेंड करता? सुन लीजिए। For adding, there are two different ways. And क्या adding? Orbital angular momentum और spin angular. spin angular momentum. It depends upon the interaction, spin interaction और orbital interaction. किस पे ऊपर डिपेंड करता वो? यानी कि स्पिन स्पिन ऐड करो और ऑर्बिटल ऐड करो और बाद में दोनों को मिला के टोटल लो। तो द कॉम्बिनेशन इज डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन और कपलिंग बिटवीन द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। And there are the two type of schemes are there. There are two type of methods there for adding this orbital angular momentum and spin angular momentum. And these are कौन-कौन से है? दो किस्में। L-S coupling, नाम पे से समझ में आता है। L बोले तो क्या? ऑर्बिटल, और S बोले तो Spin. स्पिन कपलिंग एक है, जिसको दूसरा भी, क्योंकि ये पढ़ा कौन, ये पहली बार किसने इंकशाफ किया? स्पेक्ट्रल लाइन एस्ट्रोनॉमर जो काम करते थे वो रसल एंड साउंडर्स, ये दोनों ने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन इजाद करते वक्त या अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी करते वक्त इस तरह के कपलिंग की जो है तो क्या की, लोगों के सामने मंजर आम पर लाया। तो ये कपलिंग जो है तो दूसरे भी नाम से पुकारी जाती है, रसल साउंडर्स कपलिंग। लेकिन शार्ट में खास तौर पे क्या नाम से ज्यादा फेमस है वो? LS. समझ में आ गई क्या बात? मैंने जो इतना इंट्रोडक्शन दिया आपके समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Reason of giving this large introduction in this first slide was that because in the second case we are repeating the same procedure which we have seen so far. वो फार्मूले यूज करेंगे जो कल परसों से करते आए थे और ऐड करते जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत क्लियर आपको बता दिया क्या करने का है। एंड सेकंड टाइप ऑफ कपलिंग इज JJ. समझ में आया? चलो आगे। Yes, sir. एलियस कपलिंग। चलिए पहली तो सबकी कपलिंग देखेंगे क्या है। दिस टाइप ऑफ कपलिंग सबसे ज्यादा फेमस जो कपलिंग है, जो बहुत ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होती या हमेशा इसी कपलिंग का इस्तेमाल होता, वो कौन सी कपलिंग है? एलियस कपलिंग। नाम पे से समझ में आ रहा है कि इन दिस कपलिंग में क्या होगा? वापिस बोलो, क्या होगा इस कपलिंग में? इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग और इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, कपलिंग जुड़ाना, एडिशन करना, कॉम्बिनेशन करना, तो यहाँ पे कपलिंग कराती है। क्या होगा इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग? ऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, वेक्टर है ना ये, ऑल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अपन बोले कपलिंग कब होती? सिंगल इलेक्ट्रॉन है तब करने की कपलिंग। No. कब होंगी कपलिंग? तो कब अपने लिए मंजर आम पे आएंगी? जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो उसके अंदर है ऑर्बिट में। तो क्या करना बोल रहा है इस कपलिंग में? क्या करते हैं? इन दिस टाइप ऑफ कपलिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स, वेक्टर के नाम से बोलते हैं इसको, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म द रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैपिटल एल। यानी कि पहले का L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इज इक्वल टू कैपिटल L, समेशन L इज इक्वल टू समेशन Li, बराबर है क्या? ये ऐसा। फिर क्या करने का? ये इंडिपेंडेंटली निकालने का, हर इलेक्ट्रॉन की क्या इंडिपेंडेंटली निकालने का? L1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2, तीसरे इलेक्ट्रॉन का L3, चौथे इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रही बात? हर इलेक्ट्रॉन को क्या निकालने का इंडिपेंडेंटली? एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। उसकी जमा करके क्या निकालने का? कंबाइनली रिजल्टेंट उसका, उसका रिजल्टेंट क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3 कैपिटल L. कैपिटल L, that means total angular momentum of the electrons which is present in that orbit. उसी तरह और क्या निकालने का?
and their spin angular momentum vectors to form the resultant S. यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का S1 plus S2 plus S3 plus S4 उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? capital S. Capital S. These resultants L and S, capital L and capital S, then combine. फिर दोनों को क्या करो? Combine to form the total angular momentum J. दिख रहा है क्या? J is equals to L plus S. एक आगे बात समझने, दिस J is equals to L plus S, ये हो गया, लेकिन इसमें L क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। S क्या है? पूरे Spin angular momentum. स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अपने को मालूम है कि L is always an integer. L कैसा रहता? इंटीजर है। क्या कीमत है इसकी? कहां से शुरू होता है इन्हें? उमूमन कहां से रहेगा इन्हें? 0 से। 0 1 2 3 कीमत है ना। कैपिटल L भी आया, पहले इलेक्ट्रॉन जमा दूसरे इलेक्ट्रॉन प्लस तीसरे इलेक्ट्रॉन का आया, तो आफ्टर ऑल इन्हें रहेगा कौन? एक नंबर ही रहेगा, और वो नंबर 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, और शुरू कहां से होता उन्हें? 0 1 2 3 n-1 बराबर है ना? पढ़ के आए ना अपन ने? Yes sir. उसी तरह S इज एन इंटीजर। अब S क्या रहेगा? तो S के बारे में अपने को देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन था तो कीमत क्या थी? प्लस माइनस हाफ, बराबर है क्या? Yes sir. लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है क्या? No. 2 है, मिसाल 2 है। अब जब 2 की पहले की स्पिन निकाल रहे तो समझो मिसाल के तौर पर पहले वाली की स्पिन प्लस हाफ है, तो दूसरे वाली की स्पिन भी प्लस हाफ रह सकती, या नहीं तो माइनस हाफ रहेंगी, उसकी कीमतें अलग अलग रहेंगी ना। तो क्या कीमत? यस कि प्लस हाफ पहले वाली की, तो दूसरे की माइनस। तो माइनस, अब दोनों को ऐड भी करना है ना अपने को रिजल्टेंट निकालने के वास्ते, तो हाफ माइनस हाफ इज 0। कभी क्या आएंगी? पहले की भी हाफ, दूसरे की भी हाफ, तो उस वक्त कीमत बनेगी हाफ प्लस हाफ 1। 3 इलेक्ट्रॉन अगर रहते थे तो पहले 2 की ऐड होंगी, फिर तीसरे की ऐड होंगी, यानी कि उसकी कीमत जो है 4 रहते थे। भाई पॉसिबिलिटी कैसी है? पहले का हाफ दूसरे का भी हाफ, पहले का हाफ दूसरे का माइनस हाफ, पहले का हाफ दूसरे का माइनस हाफ, तीसरे का प्लस हाफ, ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग रहेगी कि नहीं बेक वक्त। जब सबकी जमा करेंगे तो कीमत कहां से कहां तक जा सकती? 0 1 1/3/2 5/2, इस तरह से कीमत रहेंगी ना यस की। Yes. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes तो sir. यस भी एक इंटीजर रहेगा। यस इज एन इंटीजर फॉर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ फॉर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उस ऑर्बिट के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यस की कीमत क्या रहेंगी बोला आपको? इवन नंबर रहेंगे, यानी कि एन इंटीजर रहेगा। लेकिन अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद ऑड है, 3 है, 5 है, 7 है, तो उस वक्त वो जो भी नंबर रहेगा 5/2 7/2, तो किसका मल्टीपल रहेंगी? 5/2 बोले तो किसका? हाफ ऑफ 2 का नंबर हो। समझ में आ गया? ये कंसेप्ट समझ में आएगा तुम्हारे? मदिया, अनम, अफिया, अफीफा, बस ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. चलिए, तो दैट मींस उस तरह से उसकी कीमत रहेगी। तो बोलने का शॉर्ट में अगर हमको इतना इलैबोरेट करने को, शॉर्ट में अगर बोलने का, तो अगर ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल के कैपिटल एस निकालने का, सब की स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल के सब की जमा करने की कैपिटल एस निकालने का, और वो जमा एल प्लस एस करने का, टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगी किसकी? एटम की। बराबर है क्या? Yes sir. अभी जो मैंने आपको बोला कि पहले की निकालो दूसरे की निकालो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इनकी एडिशन करने के वास्ते, ये कपलिंग करने के वास्ते देयर आर दी सर्टेन रूल्स। दैट मींस क्या निकालने का, अपने क्या फॉर्म करने का? यल और यस। क्या है ये यल और यस? ऑर्बिटल एंगुलर और स्पिन रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और वो दोनों की जमा करने इस रिजल्टेंट टोटल हाँ टोटल को जब resultant J, a resultant total angular momentum, and therefore in order to form the resultant angular momentum by addition of capital S and capital S, there are the certain rules। वो रूल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि इसको कितनी वैल्यू पकड़ना किसकी, क्या क्या रूल है?
पहला तो रूल ये है कि ऑल द थ्री वेक्टर्स, ये यल यस जैसा वेक्टर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. ये कीमत क्या रहना है? सबके सब वेक्टर क्वांटाइज रहना। क्वांटाइज किसको? Quantize. यल इंटू यल प्लस वन, यल माइनस इंटू, यानी कि इनकी कीमत 0 यल 1 2 यल इंटू यल माइनस 1 इंटू यल माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसी रहना। उसी तरह यस इंटू यस प्लस 1 इंटू रेस टू 1 हाफ जे, यानी कि सब के सब तीनों, कौन सब के सब? यल, यस और जे, ये सब के सब वेक्टर J. क्वांटाइज रहेंगे। हो गई, ये एक रूल है। दूसरा रूल क्या है? यल की कीमत, कैपिटल यल में हैव द वैल्यू 0 1 2 3 है, 1, तो 2. ये 0 आना, 1 आना, 2 आना किसके ऊपर डिपेंड करता है जी? 0 कब रहेगा या 1 कब रहेगा? क्या है यल का फार्मूला? क्या है आपके पास? है ना अजीमुथल क्वांटम नंबर, कि यल 0 रहा तो यस, फिर पी, यानी कि वो जो एटम्स है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तादाद डिसाइड करेंगे ना कि उन्हें 0 रहेगा कि 1 रहेगा कि 2 रहेगा कि 3 रहेगा। समझो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, कैपिटल n इज इक्वल टू 1 है। हाँ, क्या रहना जी इस यल की कीमत फिर? 1. n माइनस 1 है ना, तो n इज इक्वल टू 1 है बोल रहा मैं आपको। Yes. तो क्या होगा? n माइनस 1 माइनस 1 0. कैपिटल 3 है, स्मॉल n इज इक्वल टू 3 है। यल को कैसे निकालते हैं हम? n माइनस 1, n इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, 2. इसके ऊपर डिपेंड करती है यल की वैल्यू, अपन पढ़ के आए ना n के ऊपर। n में एक, N के ऊपर. उसमें से एक निकालने का, जो भी n रहेगा उसमें से एक निकाले तो क्या निकलता मोटे तौर पे आपका? यार पिछला आपको याद नहीं आता कुछ? हमने आपको क्या बोले? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कीमत कहां से कहां तक है? 0 1 2 3, n माइनस 1। n क्या है? सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। उस वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो रहेगा उसमें से क्या निकालना आपने? 1 निकालना। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना रहेगा? 3. समझ में आ गई के बाद? अच्छा मुझे ये बोलिए कि n 4 n 5 n 6, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 5 है, 6 है, इसका इन्हेसार किसके ऊपर है? N के ऊपर. n यानी 4 है, मैं बोला n 4 है तो तुम बोले यल 2 है, 3 है, n 5 है तो यल 4 है, यानी कि उससे एक कम रहता यल। अब मैं बोलूं कि n 5 है, n 6 है, n 17 है, इसका इन्हेसार किसके ऊपर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है ना जी। जैसे जैसे नंबर Yes. पहले पढ़ते आए ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे, वैसे वैसे सेल बढ़ेंगे तुम्हारे। पहले में 2, दूसरे में 8, चौथे में फला, तीसरे में फला, ये तादाद किसके हिसाब से बढ़ेंगी? यन, यन क्या है? नंबर ऑफ सेल्स है। और सेल कब बढ़ेंगे? तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन। समझ में आई क्या बात? Electron bit. सेल का भी इन्हेसार किसके ऊपर है? 2 रहेगा कि 1 रहेगा कि 0 रहेगा? Number of electrons. समझ में आ गई क्या बात? Yes. N may have the value 0 1 2 3 depending upon the number of electrons in that orbit। अगर तुम्हारे को इसके अंदाज में देखने का है, इस तुम्हारे वेक्टर के एडिशन के हिसाब से देखने का है, तो अगर ऐसा अगर रहा तो L इज इक्वल टू 0। कब? जब 2 है, वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा? L इज इक्वल टू 0। 0. क्या अगर समझो इस डायरेक्शन में तो L इज इक्वल टू 1, ऐसा है। तो वेक्टर की एडिशन बता रहे, लेकिन अब वेक्टर के एडिशन में अगर आप जाएंगे तो जरा ज्यादा तकलीफ हो जाएगी आपको। फ्री फिगर के तौर पर रख दिया मैंने यहाँ। समझ में आ गई बात? यल समझ में आ गया आपके क्या रहेगा? तो अब दूसरा क्या होता है? और अपना इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरी और कौन सी टर्म जुड़ी हुई है? एस। पहले इलेक्ट्रॉन का यस, दूसरे का तो यस, तीसरे का यस, सबको मिलाने का कैपिटल यस निकालने का। कैपिटल यस की कीमत भी कहां से कहां तक रहेंगी? बोला अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, 0. 0 रहेंगी, या नहीं तो Plus half. 1 या नहीं plus तो half. या 1. 3/2. यानी 2. कि 5/2. जब जब इवन नंबर रहेगा उस वक्त एक इंटीजर रहेगा, ये
0 1 हाँ। 2 3 आगे जो भी रहेगा तो और जब 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उस ऑर्बिट में यानी क्या होगा तो कदीने क्या रहेगा हाफ हाफ 3/2 हाफ 3/2 5/2 इनके बैक साउंड है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बंद रखे थोड़ा सा प्लीज। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी डिपेंड करेंगे कि नहीं यस की कीमत भी किस पे डिपेंड करेंगी फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। जिनके पास बैक साउंड नहीं है वो बोल सकते यस नो प्लीज। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब की कीमत अपन ने जमा कर दी है। एक और चीज आपको बता दें कि भाई ये यस 0 1 2 0 1 हाफ 1 3/2 5 2 5/2 3 फिर 7/2 जो आ रहा इसका जो है तो इन्हेसार किसके ऊपर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करें कि देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद देयर स्पिन वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर। ये यस कब आया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट के अंदर और दोनों की स्पिन पैरेलल है मतलब दोनों एक ही साइड में हो रहे। तो पहले इलेक्ट्रॉन अगर पैरेलल है तो उसका कितना आएगा 1 हाफ दूसरे का कितना आएगा पैरेलल अगर है तो ये बोलिए ना प्लीज बेटा। एक इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन की कीमत क्या है अगर वो पैरेलल है। पैरेलल कब बोले अपन ने कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर उसकी मोशन है तो उसको पैरेलल बोलते ना हम। Yes, sir. उसकी कीमत क्या रहेंगी -1 हाफ या +1 हाफ +1 +1 हाफ। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें पहले के पैरेलल है तो उसकी कितनी रहेंगी Minus. माइनस रहेंगी। हाफ रहेंगी ना जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे पैरेलल है तो प्लस तो प्लस रहेंगी। Plus दोनों की जमा करे तो क्या हम्म। आएगा बाबा 1. बराबर है कि नहीं। 1 आता 1 चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर एक जो है तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हरकत कर रहा उसकी स्पिन कितनी +1/2 लेकिन उसी वक्त दूसरा +1/2 एंटी पैरेलल कर रहा उसकी कितनी -1/2 तो उस वक्त कैपिटल यस कितना आएगा दोनों की जमा करे तो कितना आएगा 0 ये बता रहे आपको। तो यानी कि ये 0 रहेगा। अब 3 है इलेक्ट्रॉन चलिए 2 था तो तुमने आसानी से बोल दिए एक था उस वक्त तो मसला नहीं एक तो +1/2 कीमत रहेंगी नहीं तो -1/2 रहेंगी। 2 रहेंगे 2 अगर रहेंगे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो यस की कीमत कभी एक रह सकती या नहीं तो कभी 0. 0 नहीं, 2 दो. सॉरी 2 रहते 2 नहीं दूसरी कंडीशन बता रहा था मैं उंगली से। एक तो एक कीमत तो क्या रहेंगी 1 रहेंगी या नहीं तो 0. अब मुझे ये बोलिए कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है तो उस वक्त कितनी पॉसिबिलिटी है इफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या पॉसिबिलिटीज है इसको कि फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी क्या है व्हेन ऑल द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल तीनों भी वेक्टर तीनों भी यस तीनों का भी स्पिन कैसी है पैरेलल है तो क्या होगा पहले का हाफ दूसरे का हाफ तीसरे का हाफ कितना बनेगा 3/2 3/2. सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी ये तीनों की तीनों एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल और एक पॉसिबिलिटी क्या बोलेंगी व्हेन 2 ऑफ देम आर पैरेलल एंड थर्ड इज एंटी पैरेलल कि पहले 2 पैरेलल है और तीसरा एंटी पैरेलल है तो 1/2 + 1/2 - 1/2 1/2 समझ में आई कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना भाई। तो 10 Yes. इंटीग्रल तो वो जो ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि यस की कीमत क्या रहेंगी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ इंटीग्रल फॉर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ऑर्बिट में उस वक्त उसकी कीमत क्या रहेंगी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जब अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो उस वक्त उसकी कीमत क्या रहेंगी हाफ इंटीग्रल ऑफ 3/2 5/2 7/2 एंड सो ऑन। समझ में आ गया क्या। अगर उसको ज्योमेट्रिकली Yes, sir. देखें तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी अंदर पूरे L1 L2 कैपिटल L S1 S2 कैपिटल S दोनों को सबको मिला दिए तो ये ऐसा बन जाएगा L J = L + F दिस इज कॉल्ड द L is कपलिंग। समझ में आई की बात। अगली कंडीशन देयरफॉर L और S मिल गया तो कैपिटल J क्या आएगा फिर देयरफॉर J जो कि किसकी जमा है L plus L. वेक्टर सम ऑफ L तो J की भी कीमत क्या रहेंगी
मिसाल के तौर पर एक अपन ने मालूम करेगा यल 0 है, यस भी 0 है, तो जे की कीमत क्या रहेगी? 0 जमा 0, तो जे भी क्या आया? 0। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? समझो जे की यल की कीमत 1 और यस की कीमत 0, तो 1 + 0 1। 1। और एक पॉसिबिलिटी, अब ये इसको जमा करे तो मतलब ये और ये अगर जमा करते चले गए तो क्या आने वाला है? जे की कीमत हमेशा क्या आने वाली? एक इंटीजर ही जाने वाली ना। यस। समझ रहे आप? जे क्या है आफ्टर 1? एक इंटीजर रहेगा जिसकी कीमत क्या रह सकती? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. So when the S is an integer that is for even number of electrons and half integer that is 1/2, 3/2, 5/2 when S has half integer of odd number of electrons, यानी J की कीमत भी क्या रहेंगी? तो दोनों को जमा करने के बाद कभी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो इंटीजर रहेगा वो 0, 1, 2, 3, और अगर अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिट के अंदर तो उस वक्त J की कीमत क्या रहेगी? हाफ इंटीजर ऑफ ऑड नंबर ऑफ, यानी कि 1/2, 3/2, 5/2. ये समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को? कि नहीं समझ रहा? चलिए, फॉर एन एटम विथ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द नॉर्मल स्टेट, एक ही इलेक्ट्रॉन अगर रहता तो L इज इक्वल टू बराबर है क्या? 0. तो L will, कैपिटल L will also have the value 0 and S. कैपिटल, हाँ ठीक है ना, कैपिटल एल बोल रहा मैं, अभी जे को मिला नहीं बोल रहा आपको 0 एंड यस. जब स्मॉल एल 0 है तो 0 + 0 बोल तो कैपिटल एल भी 0 आ गया. एक ही इलेक्ट्रॉन था बोल के आपने एल इज इक्वल टू 0 लिए, उस बाद यस की कीमत समझो प्लस हाफ है तो जे की कीमत क्या आएंगी? 0 + यस की कीमत हाफ, तो जे की कीमत 1/2. नहीं समझ में आएगा तभी आप समझ रहा क्या? जरा जोर से बोला करो बेटा. जी सर. For an atom with 2 electrons with L is equals to 0 and other in excited state with L is equals to 1, फिर उस वक्त क्या आएंगे? We have L is equal to L1 + L2, तो कैपिटल L is equals to 1, S is equals to 1, क्योंकि 1/2 हो गया. If electrons are, ये कब 1 आया? If the spin is parallel, तो फिर कैपिटल L क्या आ जाएगा? 0 + 1 is equals to 1, क्योंकि S is equals to 0 if electron spins are anti-parallel. तो बोलने का मतलब यल और यल्स की कीमत डिसाइड करेंगे कि कैपिटल जे कितना रहेगा. तो जे की कीमत क्या आ सकती? 1, 2, 3 भी आ सकती. कब? जब उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी है? इवन नंबर है. और कैपिटल जे की कीमत क्या आएंगी? 1/2, 3/2, 5/2, जबकि उस ऑर्बिट के अंदर यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कैसी है? ऑड नंबर. ठीक है. तो thus the capital J is equal to 0, 1, 2, 3. These states are designated by, इनको ऐसा बताना जब 0 यानी कि इंटीजर अगर होगा J तो उस वक्त इसको आप ऐसा बता सकते 3p0, 3p1, 3p and showing the splitting of p state of the electron. समझ में आ रही क्या बात? ट्रिप्लिकेट रहा तो इस तरह. एक बात और याद रखें कि पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इन विच n and s can combine and J values are obviously 2s + 1 is always, L is always greater than s, and if L is always less than s. The quantum condition imposed on this coupling that J can have the negative value, लेकिन J की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं रहेंगी. इस वास्ते इसको अक्सर और बेशतर किताबों में मॉड्यूलस यस बताया गया. इसको कैसे बताते हैं अपन? L - s, ये मॉड में बताते. L - J is equal to L - s है ना, तो ये कैसा बताने का? ये जो है ना, तो क्योंकि यस कैसा है आपको मालूम है, यस इज इक्वल टू यस माइनस 1, और वो जो पूरा फार्मूला है ना उसके हिसाब से. इस वजह से कभी वैल्यू क्या आ सकती है? J की निगेटिव भी आ सकती है. उस वजह से निगेटिव वैल्यू के नहीं रहना बोल के इसको हमेशा कैसे बताया जाता? क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉड इस्तेमाल करते हैं. समझ में आ गया कि आपके ये मामला? आर यू गॉट? यस सर. So now after having seen this one, आगे चलते हैं JJ कपलिंग. अब एलियस कपलिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई क्या आपको? JJ कपलिंग में कुछ नहीं है. Under certain circumstances, interaction between spin and orbit vectors in each electron may be stronger than that between either the same spin or orbital vectors of the different electron. In this case, each electron is considered separately and its contribution to the angular momentum is obtained combining the first individual spin orbital angular using the relation J is equals to L + S, and vector sum of all the individual vectors of the different electron
thus give rise to total angular momentum J, and this sort of coupling is symbolically represented. ये ऐसा देखो, अपन क्या करे थे इससे पहले वाले केस में कैपिटल एल प्लस कैपिटल एस लिए थे ना, यानी रिजल्टेंट निकाल के लिए थे। यहाँ पर भी कंबाइन करने का यल और यस, लेकिन वहां क्या करे थे, हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिपेंडेंटली S1 S2 S3 निकाले थे, कैपिटल एस निकाले थे, हर इलेक्ट्रॉन की स्मॉल L1 स्मॉल L2 स्मॉल L2 ऐड करे थे। बराबर है कि जिनका साउंड बैक साउंड है जरा बंद कर लें प्लीज, ठीक है। तो वैसे अब यहाँ वैसा नहीं करने का, क्योंकि अक्सर क्या होगा, कब कुछ खास सर्कमस्टेंस में इंटरेक्शन बिटवीन स्पिन एंड ऑर्बिट वेक्टर इज डिफरेंट, तो वैसे टाइम क्या करने का, S1 L1 S2 L2 S3 L3 ऐसा निकालने का, और उस वक्त जो है तो ये S1 L1 क्या हो जाएगा, स्मॉल J1, ये S2 L2 क्या हो जाएगा, स्मॉल J2. ये क्या हो जाएगा ऐसा। तो ये टोटल J1 प्लस J2 J3 मिला के टोटल क्या बनेगा, ये हमारा कैपिटल J। तो इसमें किसका एडिशन कर रहे तुम, फर्स्ट टाइप ऑफ कपलिंग इज कॉल्ड एज द JJ कपलिंग। समझ में आएगा एलएस और एसएस में क्या, वहां पहले केस में हर एक इलेक्ट्रॉन का सेपरेटली S1 S2 निकाल के रिजल्टेंट कैपिटल S निकालने का, हर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 L2 L3 निकाल के रिजल्टेंट कैपिटल L निकालने का और उसकी जमा करने की। अब तो कैपिटल J इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस कैपिटल S, इट इज कॉल्ड एज LS कपलिंग। लेकिन कुछ हालात में वैसा होता कि वैसा नहीं करने का, बल्कि हर इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली S1 निकालने का, उसका L1 निकालने का, जमा करने की, दोनों का J1 निकालने, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग से निकालेंगे। समझ में आया कि तुम्हारे क्या बोल रहे हो, हर एक इलेक्ट्रॉन का कैपिटल J1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का J2, और ये J1 क्या करके आता, S1 प्लस L1. दूसरे इलेक्ट्रॉन का S2 प्लस L2। पहले इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ, J1, दूसरे का क्या हुआ, J2, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल J1 J2 निकालने का, सबकी जमा करने की, वो जो कपलिंग करेंगे वो कौन सी कपलिंग कहलाएंगी, क्योंकि दोनों में भी ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही ऐड करने का, लेकिन पहले केस में रिजल्टेंट निकाल के कैपिटल L और कैपिटल S निकालने का, उसको ऐड करने का, वो LS कपलिंग कहलाएंगी। और इसमें कुछ खास हालात के तहत हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल J1 निकालने की, जो L और S से जमा होगी, और उसको ऐड करने का, दैट विल बी कॉल्ड एज विच कपलिंग, विच कपलिंग, JJ coupling. कपलिंग ऑफ दिस टाइप। ठीक है, ये तो आपको सबको मालूम है। For one electron with a single effective electron, state of atom is whole identical, यानी L is equal to L into S is equal to S and J is equal to J। समझ में आएगी बात आपके? With this one, this JJ coupling and LS coupling is over। समझ में आई बात? We shall stop here today. If you want to ask any question, you may ask within 1 minute. Otherwise, we shall stop.